معاشرے میں عدم برداشت کی انتہا ہو گئی۔ مختلف شہروں میں فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد قتل جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ علاقہ گریڈا شاہ جہاں میں شادی کی تقریب میں 2 گروپ لڑ پڑے، گولیاں چل گئیں۔ فائرنگ کے تبادلے میں خواجہ سراج جان سے گیا، 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ملزمان نے موقع پر پہنچنے والی پولیس پر بھی فائرنگ کی، تاہم پولیس اہلکار فائرنگ میں محفوظ رہے۔ پولیس نے زخمی ہونے والے افراد کو حراست میں لے لیا۔ رجحان میں شوہر نے گھریلو ناچاکی پر بیوی سے جینے کا حق چھین لیا۔ پولیس نے ملزم کی گرفتاری کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ خیرپور ناتن میں پانی کے مسئلے پر 2 گروپ لڑ پڑے، کلاڑیوں کے آزادانہ وارڈ سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس نے 10 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ سرگودا میں گھر میں ڈکیتی کی واردات ہوئی، مزاحمت پر نوجوان کو قتل کر دیا گیا۔ ڈاکو 12 لاکھ روپے نقدی لے اڑے۔ لوئر دیر کے ضلعی ہیڈ کوارٹر تیمر گرہ میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات ہوئی، ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ڈاکو 2 کروڑ 30 لاکھ روپے لے اڑے۔ تیز رفتاری خطرناک حادثات کا سبب بن گئی۔ مختلف ٹریفک حادثات میں 5 مسافر جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ علی پور میں وین اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں بہن بھائی جاں بحق جبکہ والدہ شدید زخمی ہو گئی۔ سیون شریف میں مسافر وین الٹ گئی، حادثے میں 2 مسافر جاں بحق جبکہ 12 شدید زخمی ہو گئے۔ ٹھٹہ میں کیٹی بندر کے قریب کشتیاں الٹنے کا حادثہ، انتظامیہ اور پارک نیوی نے ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے مزید 4 لاشیں نکال لی۔ ٹھٹہ میں کیٹی بندر کے مقام پر کشتیاں الٹنے کا سانحہ، سمندر کی بے رحم موجوں کی نظر ہونے والی مزید 4 لاشیں نکال لی گئی۔ اب تک ملنے والی لاشوں کی تعداد 7 ہو گئی۔ مزید 5 ماہی گیروں کی تلاش کے لیے پاک نیوی کا آپریشن جاری ہے۔ حجرہ شاہ مقیم کے پوسٹ آفس میں بل جمع ہونے میں تاخیر پر غنڈہ گرد آپے سے باہر ہو گئے، سرکاری ملازمین کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ غنڈہ گردوں کو پروٹوکول نہ دینا ملازمین کا جرم بن گیا۔ حجرہ شاہ مقیم پوسٹ آفس میں 62 افراد نے حملہ کر دیا، ملازمین پر وحشیانہ تشدد کیا گیا، سرکاری کیش لے گئے اور ریکارڈ بھی تباہ کر دیا۔ ڈہرکی میں کچے کے علاقے سے 2 افراد اغوا کر لیے گئے، مویشیوں کو ویکسین لگانے گئے ڈاکٹر دوست سمیت لاپتہ ہو گئے۔ ورثاء کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز ڈاکٹر رفاقت حسین کی کال آئی کہ کچے میں جانوروں کو ویکسین لگانا ہے، اس وقت کے نکلے 24 گھنٹے گزر جانے کے باوجود واپس نہیں آئے۔ جنڈ کی اہم شاہراہ کی ناقص تعمیر کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ 1 ارب سے زائد کا منصوبہ متعلقہ اداروں، ٹھیکیدار اور علاقے کی سیاسی قیادت کی لاپرواہی کی وجہ سے وبال بن گیا ہے۔ حافظ شفیق کی رپورٹ۔ جنڈ بین الصوبائی شاہراہ کے جنڈ تا اٹالی اڈہ تک کے حصہ کی ناقص تعمیر کی وجہ سے 1 ارب سے زائد کا پروجیکٹ متعلقہ اداروں، ٹھیکیدار اور سیاسی قیادت کی لاپرواہی کی وجہ سے عوام کے لیے وبال جان بن گیا۔ روڈ کا کام ابھی تک مکمل نہیں ہوا اور جگہ جگہ پر گہرے گڑھے بن چکے ہیں۔ جنڈ کی بین الصوبائی روڈ جس کی تعمیر نو کا کام تعطل کا شکار ہے، اور جو تعمیر نو ہو گئی ہے اس پہ بھی جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے ہیں، اور ان گڑھوں کی وجہ سے آئے روز حادثات کا معمول بن گیا ہے۔ چند ماہ سے ٹھیکیدار روڈ کی سائیڈوں پر روڑی ڈال کر کام ادھورا چھوڑ کر عملہ سمیت غائب ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے حادثات معمول بن چکے ہیں۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں انتظامیہ کی لاپرواہی کے باعث شہر بھر میں تجاوزات کی بھرمار ہے۔ سلطان سدھو کی رپورٹ۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں تجاوزات کی بھرمار ہے۔ صدر بازار سمیت متعدد بازاروں میں قبضہ مافیا کا راج ہے۔ شہر میں تجاوزات کی وجہ سے راہگیروں کو اور خواتین کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہر کے بارونق علاقے مچھلی بازار میں بھی دکانداروں نے 3 فٹ تک سڑک پر قبضہ جما رکھا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بار بار شکایت درج کروائی گئی مگر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں آئے دن تجاوزات کی وجہ سے روڈ جو ہے بلاک رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ٹریفک کا مسئلہ بنا رہتا ہے نجائز تجاوزات کی وجہ سے۔ شہری اور سماجی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر سمیت اعلی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ قبضہ مافیا کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے اور سڑکوں کو کشادہ کیا جائے۔ کیمرہ مین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود، ٹوبہ ٹیکسنگ۔ میونسپل کمیٹی حکام کی غفلت کے باعث خانیوال میں سیوریج کا سسٹم تباہ حال ہو گیا۔ رانا طاہر کی رپورٹ۔ خانیوال شہر اور نواحی علاقوں سمیت مین بازار جامعہ عنایتیہ روڈ کی سیوریج لائن عرصہ دراز سے دکانداروں اور اہل علاقہ کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے۔ مین سیوریج لائن بند ہونے سے خریداری کی غرض سے آنے والے شہریوں کے ساتھ ساتھ دکانداروں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ لگا کے مشین جون سا اس سے بس
आर्जी तौर पे हो जाता है, उसके बाद फिर वही हाल होता है। गुज़श्ता 2 महीनों से आर्जी हल के लिए मशीनरी लगाकर बल्दिया के अफसरान और एहलकार डीजल की मद में मुबैना तौर पर हजारों रुपए की करप्शन कर रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक आर्जी हल के बजाय मुस्तकिल तौर पर पाइप लाइनों की सफाई करके सीवरेज पाइप लाइनों को खोलना चाहिए। कैमरामैन नवीद अशरफ के हमरा राना मोहम्मद ताहिर, ब्यूरो चीफ, सच टीवी, खानेवाल। रहीम खान में पीने के साफ पानी का मसला शिदत अख्तियार कर गया। रिपोर्ट करेंगे हसन रहमानी। साफ पानी इंसान की बुनियादी जरूरत में लाजमी है। पानी के बगैर जिंदगी का तसव्वुर मुमकिन नहीं, मगर रहीम यार खान का जेरे जमीन पानी आर्सेनिक नामी जहर से खराब हो गया है, जिससे अस्पतालों में मुख्तलिफ मरीजों का रश बढ़ गया है। और जहाँ ये ज़्यादा ये आर्सेनिक के ट्रेसेस पाए जाते हैं, वो आपके सारे सिस्टम को, इंसानी सिस्टम को ख़राब कर देते हैं, जिसमें आपका न्यूरो सिस्टम है, जिसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। पब्लिक हेल्थ की नाकस कारकर्दगी के बायस रहीम यार खान में लगाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मुकम्मल तौर पर बंद पड़े हैं, जबकि मुखय्यर हजरात की जानब से लगाए जाने वाले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर आवाम का रश रहता है, जो 2 घूंट पानी साफ लेने के लिए सारा दिन लाइनों में लगे रहते हैं। इतने खतरनाक नताइज नजर आ रहे हैं, और इसका सिर्फ यही है कि इनको पानी सही तरह से फराहम नहीं होता और नाकस पानी पीने की वजह से ये वजूहात हुई हैं। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेते हुए पब्लिक हेल्थ के अमले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शहर में लगे वाटर प्लांट्स को दोबारा बहाल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, सच न्यूज, रहीम यार खान। नारोवाल में सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजामात शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। सैयद सगीर शाह की रिपोर्ट। नारोवाल के मेन कारोबारी मरकज ईदगाह रोड पर शहर की गंदी तरीन सूरत हाल पर शहरी हुकूमती नुमाइंदों को कोसते रहे। शहर का पानी भी न निकाला जा सका, गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही है। आप नीचे को कैमरा करें और देखें हम कितने पानी में खड़े हैं और हमारे कारोबार तबाह हो चुके हैं। नालियों के गटरों के पानी से आवाम सख्त मुश्किलात में गिरे हुए हैं और कारोबार ठप होकर रह गया है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ सैयद सगीर हुसैन शाह, सच न्यूज, नारोवाल। दीपालपुर में आवारा कुत्तों ने ढेरे जमा लिए। आवारा कुत्ते कई मासूम बच्चों को काटकर जख्मी कर चुके हैं। दीपालपुर में आवारा कुत्ते शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। शहर भर में खौफ व हरास फैल गया। खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने मर्दान में बड़ी कार्रवाई करते हुए बच्चों के लिए तैयार मुज़र सेहत जूस बरामद कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी इन एक्शन, खुफिया इत्तला पर मर्दान में फैक्ट्री पर छापा, मुज़र सेहत जूस की तैयारी पकड़ी गई। सिनावा में खाद डीलर्स ने शटर डाउन हड़ताल कर दी। खाद के उसूल के लिए किसान रुल गए। मुनीर हुसैन की रिपोर्ट। सिनावा के किसानों की खाद का हसूल परेशानी का सबब बना हुआ है। सिनावा और गिरदुनवा में खाद डीलरों की हड़ताल दूसरे रोज में पहुंच चुकी है। डीलरों का कहना है कि आए रोज इंतजामिया की तरफ से नाजायज कार्रवाइयों पर हड़ताल की हुई है। दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि सिनावा के डीलरों को कोटे की खाद दूसरे शहर के मन मर्जी के लोगों को दी जा रही है। शहर दे विच दुकानां बंद हैं, साको खाद नहीं मिलती, सारियां फसलां बर्बाद किया हुई हैं। जा तो पहले ब्लैक ते मिलती, हुण फिर वो ही नहीं मिलती। किसानों ने एहतजाज करते हुए डीसी मुजफ्फरगढ़ और असिस्टेंट कमिश्नर कोटदू से मुतालबा किया है कि सिनावा और गिरदनवा के किसानों को इस्तेसाल की बजाय खाद फराहम की जाए। मुनीर हुसैन, सच न्यूज, सिनावा। शाहकोट में खाद माफिया की शामत आ गई। इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए जखीरे शुदा खाद की 167 बोरियां बरामद कर ली। असिस्टेंट कमिश्नर शाहकोट डॉक्टर औरंगजेब ने असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत ऑफिसर चौधरी अहमद जवाद के हमरा कार्रवाई की है। आने वाला के किसान महंगाई के तूफान से आजिज आ गए। ज़राई ट्यूबवेल के बिल में जालिमाना टैक्स, खाद और मक्के का बीज महंगा। नज़ीर खरल की रिपोर्ट। हर महंगाई की वजह से पहले ही तंग किसान अब ज़राई ट्यूबवेल के बिल में भी जालिमाना टैक्स, DAP 10,000 रुपए, मकई के बीज का रेट 16,000 रुपए होने से किसान इंतहाई परेशान। किधर जाएं कोई पुरसाने हाल नहीं। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चौधरी अनवर ग्रुप ने बिजली के बिल रोक लिए। बड़े परेशान हैं पूरे पंजाब के किसान। जेड़ा फ्यूल टैक्स लगाया गया टोला नूं इस तरह साढ़े को नहीं चलाए जाते। इस अलावा अगर साढ़े मुतालबे ना मन्ने गए तो असं इस्लामाबाद का रुख करांगे। मजीद इनका कहना है कि हम इस हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च की भरपूर तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक जालिमाना टैक्स, DAP के रेट कम नहीं करेंगे। किसान खुशहाल होगा तो ही पाकिस्तान खुशहाल होगा। अहले कश्मीर भारत के नाम नहाद यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं।
लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम सियाह मना रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नयासी ने कहा कि भारत की जमहूरियत दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए सबसे बड़ा फ्रॉड है। यौम सियाह की मुनासिबत से आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में एहतजाजी रैलियाँ निकाली गयी। मुजफ्फराबाद में घड़ी पिन चौक से बुरहान वानी शहीद चौक तक रैली निकाली गयी, जिसमें आवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। भारत मुखालिफ एहतजाजी रैली में शरीक लोगों ने स्याह परचम लहराए और स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज किया। मीरपुर आजाद कश्मीर के चौक शहीदा में रैली निकाली गई, जिसमें तलबा और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। रैली के शिरका ने भारत मुखालिफ नारेबाजी की। टांग की तारीख में पहली मरतबा भिटनी कौम की जानिब से गैर कानूनी भारी असला रजाकाराना तौर पर FC साउथ के हवाले कर दिया गया। टांग के कबायली इलाके जिंजोला के कबाइल ने मुल्क और कौम के वसी तरीन मफाद में अपना गैर कानूनी असलहा जमा करा दिया। तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सेक्टर कमांडर FC साउथ थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर टांग, फौजी क़यादत और उमायदीन इलाका मौजूद थे। जमा शुदा असलहे में एंटी एयरक्राफ्ट गन, रॉकेट लॉन्चर, मार्टर और हजारों कारतूस शामिल थे। तकरीब से खिताब करते हुए सेक्टर कमांडर साउथ ने कहा कि भिटनी अमन पसंद कौम है और हमेशा मुल्क और कौम के मफाद में फौज पाकिस्तान का साथ दिया है। आज एक तारीखी दिन है। भिटनी कौम अपना गैर कानूनी असलहा जमा करा के हमेशा की तरह वतन से मोहब्बत का सबूत दिया है। IG FC साउथ की जानिब से भिटनी कौम के 15 मुशरान को उम्रा पैकेज से भी नवाजा गया। कोरोना के मुस्बत केसेस की यौमिया शरह में कुछ कमी, शरह 10.17% रिकॉर्ड की गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 51,063 नए टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक 2,46,91,005 अफराद के टेस्ट किए जा चुके। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 29,137, जबकि कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 13,86,348 हो गई। कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 86,124 हो गई, जिनमें से 1,293 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अब तक 12,71,087 मरीज सेहतयाब हो चुके। चिन्योट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने खतरनाक इश्तिहारी को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल रहमान कलियार की रिपोर्ट। चिन्योट पुलिस ने खतरनाक इश्तिहारी को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर चिन्योट पुलिस ने 7 साल से मतलूब मुजरिम इश्तिहारी इंटरपोल के जरिए सऊदी अरब से गिरफ्तार करवा लिया। इश्तिहारी मुजरिम मुख्तियार अहमद थाना सिटी पुलिस को डकैती के मुकदमात में मतलूब था। इश्तिहारी मुजरिम ने 7 साल कबल साथी मुलजमान के हमरा गन पॉइंट पर 1.5 लाख से ज्यादा नकदी, मोटरसाइकिल वगैरह छीने थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट का कहना था कि इश्तिहारी मुजरिम और जदीद टेक्नोलॉजी समेत तमाम वसाइल बुराए कार लाकर मुजरमान इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। कैमरामैन तस्वर याद के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, ब्यूरो चीफ सच न्यूज चिन्योट। बूरेवाला में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बिजली के ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले गिरोह के 6 मुलजमान गिरफ्तार। करीम सैफी की रिपोर्ट। बुरेवाला थाना सिटी पुलिस ने DPO विहाड़ी की खसूसी हदायत पर मैपको के ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले बैनुल इजराई गैंग के 6 मुलजमान, जिनमें बाबर, शाहद, इसरार, शफीक, शरीफ और जीशान को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जा से वारदातों में इस्तेमाल होने वाली 20 लाख मालियत की गाड़ी और 15 लाख रुपए नकदी बरामद कर ली। ये मुलजमान दिन के औकात जगह का इंतखाब करते और रात के वक्त ट्रांसफार्मर चोरी करके साहिवाल फरार हो जाते। ट्रांसफार्मर खोल कर पार्ट्स को सेल कर देते। SHO अकदस अली शाह ने तफसीलात बताते हुए कहा कि दौरान तफ्तीश मालूम हुआ है कि ये एक मुनज़्ज़म गैंग है। मुलजमान के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात में मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मोहम्मद तारक अजीज ने पुलिस की इस कार्रवाई पर पूरी टीम को शाबाश दी। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज बुरेवाला। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के अहकामात पर राना ताहिर रहमान खान डिस्ट्रिक्ट जेहलम में खुली कचहरी का इनेकाद। बाबर हुसैन की रिपोर्ट। IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में राना ताहिर रहमान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जेहलम में DPO ऑफिस जेहलम में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। इस मौका पर मोहम्मद इब्राहिम वड़ाइच DSP सिटी सर्कल, मोहम्मद सलीम खटक DSP सदर सर्कल, SHOs थाना सिटी सिविल लाइन समेत लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जेहलम ने खुली कचहरी में आए हुए साइलिन के मसाइल को सुना और मुतल्लिका अफसरान जिला हाजा को साइलिन के मसाइल के हल के लिए फौरी अहकाम जारी किए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जेहलम ने मजीद कहा कि शहरियों की खिदमत हमारा अवलीन फर्ज और इसके लिए किसी भी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ सच न्यूज जेहलम। कोरोना के फैलाव ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। मुस्बत केसेस के बाद पिशावर में 4 जबकि रावलपिंडी में 6 मजीद स्कूल और 3 कॉलेजेस सील कर दिए गए।
पेशावर में तलबा के कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर गवर्नमेंट हाई स्कूल हसार खानी, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल चकरमटी और गवर्नमेंट हाई स्कूल बिजनी को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। बंद होने वाले स्कूल्स में एक निजी स्कूल भी शामिल है। रावलपिंडी में एक निजी और 8 सरकारी तालीमी इदारों के तलबा, असातिज़ा और स्टाफ में कोरोना की तशखीस हुई। 3 फरवरी तक सरबा मुहर किए जाने वाले स्कूलों में गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल ढोक कश्मीरिया, इस्लामिया हाई स्कूल नंबर 1 जंगी महल्ला, हाई स्कूल रत्ता अमराल, हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 बाग सरदारा, गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल तरी डोराल गुजर खान और बेकन हाउस स्कूल सिस्टम टीपू रोड शामिल हैं। सील किए गए कॉलेजेस में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खवातीन ढोक रत्ता, एसोसिएट कॉलेज खवातीन ढोक सैयदा और डिग्री कॉलेज बराए खवातीन मोहनपुरा शामिल हैं। मौसम सरमा में माल्टे और कीनू कुदरत का अनमोल तोहफा है। इस हवाले से देखिए साजिद अली की रिपोर्ट। कीनू माल्टे खाने के शौकीन तो सभी हैं। चौक सरवर शहीद के सैकड़ों एकड़ रकबे पर कीनू के बाग पककर तैयार हो चुके हैं। बागबान पूरा साल बाग की देखभाल करते हैं। व्यापारी बागबानों से बाग खरीद कर कीनू मुख्तलिफ मंडियों तक पहुंचाते हैं और अपनी रोजी कमाते हैं। बाग बाग दी साल मेहनत करने हैं, साल दे बाद तैयार थींदे, असां पानी लेंदे, दी गोडी करने, दी स्प्रे करने, साल दे बाद असां पट के खुद खरीद ठेके ते कीते, ठेके के बाद जो असां टालते बेचते हैं, मंडी ते बेचते हैं। ऑरेंज जो है ना जी, वो खुदा की नेमतों में से एक बड़ी अच्छी नेमत है जिसमें विटामिन सी पाई जाती है और विटामिन सी जिस्म की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। जिम्मेदार कीनू को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को तोहफे के तौर पर भी भेजते हैं। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज, चौक सरवर शहीद। सर्दियों का मौसम हो और गाजर का हलवा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। देखिए रजब अली की रिपोर्ट। सर्दियों की मौसम हो और गर्म गाजर का हलवा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बात करते चलें खैरपनाथन शाह की। खैरपनाथन शाह में मौसम सर्द की खूबसूरत सौगात गाजर का हलवा शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। सर्दियों की शिद्दत में इजाफा होते ही खैरपनाथन शाह के मुख्तलिफ दुकानों पर जायका से मालामाल गाजर के हलवे के स्टॉल और दुकानों की जानिब से शहरियों ने रुख कर लिया। गाजर का हलवा लाल, मीठा और खुशबू भरा होता है। गाजर के हलवे में देसी घी, खालिस दूध, बादाम, चीनी और दीगर खुशबूदार मसाले शामिल किए जाते हैं। शहरी की जानिब से गाजर का हलवा मौसम सर्द में बड़े शौक से खाया जाता है, जबकि शहरी की जानिब से बड़ी तादाद में घरों में भी बनाया जाता है। जानिब से गाजर का हलवा मुल्क के दीगर शहरों समेत बैरून मुल्क में भी अपने प्यारों को बड़े शौक से गिफ्ट किया जाता है। रजब अली, सच टीवी, खैरपनाथन शाह। चकवाल में पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन के 9 मुंतखब अहदेदारान की हलबरदारी की तकरीब मुनक्किद हुई। राजा साकिब अब्बास की रिपोर्ट। पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन चकवाल की तकरीब हलफबरदारी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मुख्तलिफ बाज़ारों के सदूर और ताजरों ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी सदर पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन मियाँ तारिक जावेद और सदर चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शेख हारून थे। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि पोल्ट्री एसोसिएशन के क़याम से पोल्ट्री से वाबस्ता ताजरों के मसाइल के हल के लिए एक अच्छा कदम है और हमारी ताजर बरादरी के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। तकरीब से खिताब करते हुए मियाँ तारिक जावेद और शेख हारून का कहना था कि अब पोल्ट्री के रेट के हवाले से एसोसिएशन का नुमाइंदा और सरकारी नुमाइंदा मिलकर रेट निकालेंगे और अगर आपको किसी तरह का मसला हो तो आप अपने मुंतखब नुमाइंदों से रब्ता कर सकते हैं। ताजर बरादरी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं और चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ताजर बरादरी के साथ है और उनके मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आखिर में मेहमान खसूसी ने 9 मुंतखब अहदेदारान से हल्फ लिया और सदर पोल्ट्री एसोसिएशन चकवाल ख्वाजा फारद मसूद, सेक्रेटरी जनरल शेख बिलाल और दीगर अहदेदारान ने मेहमानों को धनी सकाफती पग भी पहनाई। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चकवाल। हादसात को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक कवानीन की आगाही और बच्चों की ड्राइविंग की रोकथाम के लिए मुहिम का सिलसिला शुरू। ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट। आए रोज होने वाले हादसात के सबब जहां कीमती जानें ज़ाय हो जाती हैं, वहीं हादसात की सबसे बड़ी वजह ट्रैफिक कवानीन से आगाही न होना और कम उम्र बच्चों का गाड़ियां चलाना है। हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस लिया की जानिब से तालीमी इदारों में ट्रैफिक कवानीन आगाही का सिलसिला शुरू कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस अफीसर का तालीमी इदारों में तलबा से खिताब करते हुए कहना था, हादसात को रोकने के लिए कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल और गाड़ियां चलाने से बाज रखा जाए। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस अफीसर का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, इस पर आज जो मुहिम का आगाज करते हुए जो आज कैंपेन चलाई गई उसमें कम उम्र बच्चों का था कि उनसे रिक्वेस्ट की गई है और उनके ज़रिए उनके वालिदैन को रिक्वेस्ट की गई है कि बराए मेहरबानी कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल या किसी किस्म की कोई गाड़ी ना चलाने दें। ट्रैफिक कवानीन पर अमल करते हुए जहां हादसात से बचा जा सकता है, वहीं हादसात के सबब अस्पतालों पर पड़ने वाले बोझ को भी कम किया जा सकेगा। कैमरामैन जुबैर लचकानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। पेशावर में अमराज क़ल्ब और दीगर गैर मुताद्दी बीमारियों के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। वाजिद शहजाद की रिपोर्ट। पेशावर के एक निजी होटल में पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन की जानिब से गैर मुतअद्दी अमराज के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में दिल, शुगर, ब्लड प्रेशर समेत जिगर की बीमारियों की वजूहात और रोकथाम पर रोशनी डाली गई।
तंबाकू जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है, शुगरी ड्रिंक है ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है, बीमारियां पैदा करती हैं, बीमारियों की वजह है। और हम चाहते हैं कि इनके ऊपर टैक्स लगाया जाए। इनके ऊपर टैक्स लगा के वहाँ से जो रेवेन्यू मिलेगा वो आपको विन विन सिचुएशन होगी, बीमारियां कम होंगी, लोगों की तकालीफ कम होंगी और 55 से 60 अरब रुपया टैक्स जो मिलेगा, 144 चीज़ें आपने जो ज़रूरियात ज़िंदगी महंगी की हैं वो जो है ना वो आपको वो महंगी करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो ऐसी पॉलिसीज़ वज़ा की जाएँ कि जिससे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को कम करने में मदद मिले, जिस तरह टबैको का इस्तेमाल है उसको कमी लाई जा सके और उसके साथ साथ जो है जो शुगर स्वीटन बेवरेजेस हैं उनके ऊपर टैक्स को बढ़ाया जाए, उनके इस्तेमाल में कमी लाई जा सके। सेमिनार से खिताब में तिबी माहिरीन ने कहा कि पाकिस्तान इन ममालिक में सरे फहरिस्त है जहाँ पर डायबिटीज की बीमारियों में तेजी से इजाफा हो रहा है। ताहम बेहतियाती और शुगर के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से मुल्क में ज़ियाबेट्स की बीमारी में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। जहाँ पे कोरोना डेली 100 से अबव अमवात का जिम्मेदार है, लेकिन NCDs जो हैं वो रोज़ाना 2200 से ज़ायद अमवात की जिम्मेदार हैं, यानी कि NCDs जो हैं वो कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक हैं। पास डायबिटीज़ की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि लोगों में इतनी अवेयरनेस प्रोड्यूस करें ताकि सब एज अ टीम वर्क जो है वो काम करें उसमें। तिबी माहिरीन के मुताबिक इन बीमारियों की वजह से मुल्क में रोजाना 2000 से ज्यादा अफराद मुतासिर होते हैं, जिसकी एक बड़ी वजह लोगों में आगाही न होने समेत गैर एहतियाती है। कैमरामैन असद आबिद के साथ वाजिद शहजाद, सच टीवी, पिशावर। ईरान और पाकिस्तान के माबैन दोस्ती की फ़ज़ा कायम करने के लिए पिशावर के एडवर्ड कॉलेज में एक रोज़ा ईरानी सकाफती नुमाइश का इनेकाद। अदराज शाहिद की रिपोर्ट। ईरानी सकाफत को उजागर करती ये नुमाइश सजी पिशावर की तारीखी एडवर्ड कॉलेज में। नुमाइश में ईरानी फनपारे, कीमती अशिया, कदीमी कुतब और तस्वीरें तुलबा को हमसाया मुल्क की तारीख और सकाफत की आगाही फराहम करती रही। तो ईरान के बारे में इतना तो नॉलेज नहीं था, लेकिन इस एग्जीबिशन के ज़रिए से हमें काफ़ी चीज़ों का पता चला, उनकी एंटीक चीज़ों का पता चला, तो ये एक तरीके से हमें काफ़ी नॉलेज हुई। हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान के कल्चर के बारे में हमें मालूमात हासिल हुई। इससे पहले हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि ऐसे भी जो टूरिस्ट अट्रैक्शन वाली जगह है वो भी हमें मालूम हुई। खाना फरंग के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा नुमाइश में फ़ारसी ज़ुबान में कुतुब के स्टॉल्स भी लगाए गए। नुमाइश का मकसद ईरान की सकाफत को फ़रोग़ देना है। फ़ारसी अदब की, फ़ारसी कल्चर की प्रमोशन मेरा ख्याल है कि हमारे तलबा के लिए इसलिए ज़रूरी है कि हमारे तलबा जो अब अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं और एक वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं, तो अपने बेस को जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यही वजह है कि हमने यहाँ पे इस एग्जीबिशन का एहतमाम किया। बेसिकली आई एम आर्ट लवर में क्या है कि मुझे पेंटिंग्स बहुत पसंद है। यहाँ पर मैंने खुद ऑफ कोर्स हमने भी तो अभी तक अपनी नेकेड आई से तो नहीं देखा था, मुझे तो इनकी हर चीज़ बहुत पसंद है। मालूमाती और सकाफती नुमाइश से जहां शहूर उजागर होगा, तो वहीं पाकिस्तान और ईरान के माबैन भाईचारे और दोस्ती की फिजा भी कायम होगी। ईरानी सकाफत को फनपारों के जरिए पेश करने का मकसद तुलबा और तालबात को ईरान की सकाफत के बारे में आगाही फराहम करना है। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पिशावर। मुल्तान में ट्रैफिक के मसाइल से छुटकारा हासिल करने के लिए MDA चौक से लोधी कॉलोनी तक सड़क की तामीर नौ की मंजूरी। शहरोज खान की रिपोर्ट। शहर औलिया के शहरियों के लिए अच्छी खबर यह है कि मुल्तान शहर में नए तरक्याती मंसूबे शुरू हो रहे हैं। नया मंसूबा MDA चौक से लोधी कॉलोनी तक जो रोड है इसको खुला किया जाएगा। ये तकरीबन 1.25 अरब रुपए का मंसूबा है। ये रोड हेड मोहम्मद वाला बाईपास तक खुला हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का स्पेशल फोकस है। जैसे कल एक प्रोजेक्ट की अप्रूवल हुई है कि बोसन रोड से और हेड मोहम्मद वाला, सैदेवाल चौक से हेड मोहम्मद वाला तक ये तकरीबन 1600 मिलियन का है। कल इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इशू हो गई है। PND ने इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इशू कर दी है। इसी तरह MDA चौक से लोधी कॉलोनी तक ये भी तकरीबन कुछ 1.25 अरब का प्रोजेक्ट है। इसकी भी अप्रूवल दे दी गई है। अल्टीमेटली सड़क ने हेड मोहम्मद वाला तक जाना है। मजीद डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का कहना है कि सईदा वाला बाईपास से हेड मोहम्मद वाला रोड भी खुला किया जा रहा है। इस मंसूबे पर भी 1600 मिलियन लागत आएगी। मुल्तान के शहरियों का कहना है कि MDA चौक से हेड मोहम्मद वाला बाईपास तक रोड के खुले होने से हम बहुत खुश हैं। ये MDA से अवान चौक तक सुना है और पहले ही वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने हेड मोहम्मद वाला रोड पहले ही जो है ना
सस्पेंड करने का जो है ना ऑर्डर दे दिया। और जी बहुत अच्छा है ये, सिर्फ इंतज़ामिया बल्कि हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब का ये बहुत अच्छा स्टेप है। MDA से अवान चौक तक हो रहा है, अल्लाह करे जल्दी हो जाए और एक वन वे भी हो जाए तो बेहतर है। और उस्मान बुज़दार जनूबी पंजाब में अच्छा काम कर रहे हैं। रोड के खुले होने से निश्तर अस्पताल और एयरपोर्ट जाने आने वाले शहरियों को परेशानी का जो सामना होता था वो अब नहीं होगा। स्कूल कॉलेज की ट्रांसपोर्ट और एम्बुलेंसेस सर्विस को आने जाने के लिए रास्ते में जो परेशानी होती थी, इस रोड के खुले होने से वो भी नहीं होगी। नई ADP के अंदर 200 से 225 तक की जो स्कीमें हैं, इन पर काम जारी है। कैमरामैन अशीक यासिन के साथ शहरोज़ खान, सच न्यूज़, मुल्तान। नूरदीन में अवामी नेशनल पार्टी ने तहसील खाल के 20 काउंसिल्स के लिए अपने उम्मीदवारों की नामजदगी मुकम्मल कर ली। नेशनल पार्टी ने तहसील खाल की 20 विलेज कौंसलों के लिए अपने उम्मीदवारों की नामजदगी मुकम्मल की है, जबकि अवामी नेशनल पार्टी ने पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ बलदियाती इंतखाबात में इत्तेहाद के लिए बातचीत जारी करने पर इत्तेफाक कर लिया। इस सिलसिले में बलदियाती इंतखाबात के हवाले से अवामी नेशनल पार्टी तहसील खाल के एक मशावरती इजलास मुनक्किद हुए, जिसमें कारकुनानों और अहदेदारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। अवामी नेशनल पार्टी तहसील खाल के तमाम विलेज कौंसलों के लिए अपने उम्मीदवार नामजद कर दिया है और 7 फरवरी को अवामी नेशनल पार्टी तहसील खाल के तमाम नामजद उम्मीदवार जुलूस की शक्ल में जाकर कागजात नामजदगी जमा करेंगे। इस मौका पर बलदियाती इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करने और इंतखाबी मुहिम मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए विलेज कौंसलों की सतह पर कमेटी तश्कील दी गई। मशावरती इजलास में बलदियाती इंतखाबात के लिए पाकिस्तान पीपल पार्टी से इत्तेहाद के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, खाल, लाहौरदीर। फल कुदरत का अनमोल तोहफा और अहम इंसानी ग़िज़ा भी है। देखिए राशिद महमूद की रिपोर्ट। सस्ता, लजीज और फरहत बख्श फल अमरूद जायके में मीठा और ग़िज़ाई एतबार से तिब्बी फ़वाइद से भी मालामाल है। पाकिस्तान में अमरूद पैदावार के लिहाज से तीसरा बड़ा फल है। बच्चे, बड़े और बुज़ुर्ग इसे शौक़ से खाते हैं। अमरूद में इंसानी जिस्म को बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत बख्शने वाला विटामिन C भी मौजूद होता है। अमरूद के फल के अलावा इसके पत्ते भी हर किस्म के तेज़ाबी असरात से इंसानी जिस्म को महफूज रखते हैं। अमरूद मुनासिब कीमत में हर गरीब अमीर की दस्तरस में रहता है। अमरूद की जदीद हाइब्रिड इकसाम सारा साल फल देती रहती हैं। रोज़ाना एक अमरूद का इस्तेमाल आपको सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने में भी मदद देता है। अमरूद की फसल मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाती है, ताहम ज़रई माहिरीन की सिफारिशात पर अमल पैरा होकर ज्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है। कैमरा टीम कैमरा राशिद महमूद, सच TV न्यूज़, वजीराबाद। खानका डोगरा की आवाम का दरीना मुतालबा पूरा हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं महबूबी। लाहौर सरगोदा रोड तकरीबन 4 साल से भी ज़्यादा अरसा से टूट फूट का शिकार था, जिससे शहरियों और गिरदोनवा की आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना था। तहरीक इंसाफ की क़ियादत NA 122 राना अली सुलमान चेयरमैन टोयोटा और टिकट होल्डर PP 143 राना वहीद अहमद खान ने मेन लाहौर सरगोदा रोड की कारपेट तामीर का इफ्तिताह कर दिया और मेन रोड की तामीर का आगाज़ हो गया। सफदराबाद रोड है, उसके ऊपर भी टफ टाइल लग रही है और सफदराबाद में आपने देखा है कि उसके जो मेन रोड थे सारे माशाल्लाह कारपेट हो चुके हैं। फारूकाबाद में हमारे नहरों के पुल थे, वो भी काम कंप्लीट हो चुका है। इलेक्शन के दौरान हल्का के अवाम से किया हर वादा पाया तकमील तक पहुंचेगा। हल्का की अवाम मेरा सरमाया है। वकास सोना के साथ मुबीन महर, सच न्यूज़, खानका डोगरा। रुझान में अल पाकिस्तान घड़दौड़ का मेला सज गया। देखिए मलिक तुफैल की रिपोर्ट। रुझान में सजा घोड़ सकाफती अमन मेला, जिसमें सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के नामवर घोड़सवार और बर्क रफ्तार घोड़ों ने हिस्सा लिया। हर साल सजने वाले इस मेले के लिए घोड़ों को खूब तैयार किया जाता है। इस बार भी ये मेला आवाम की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। घोड़सवारों ने ट्रैक पर खूब घोड़े दौड़ाए। आवाम से बातें करते बर्क रफ्तार घोड़ों ने जहां मालकान को अपने सर में जकड़े रखा, वहीं शाकीन को भी खूब महसूस किया। घोड़ा मालकान का कहना है कि हम अपने घोड़ों की खातिर तवाज़ देसी घी और मक्खन से करते हैं। इधर घोड़ों की रेस देखने आए क्योंकि हम खुद शौकीन हैं। हमारे उधर घोड़े हैं, हमारे सिंध में भी उधर होते हैं ये सकाफती मेले। माशाल्लाह इधर भी हमें बहुत रुझान मज़ारी में आए हैं, बहुत मज़ा आया है। इसमें लोग तफरीह की तरफ मुतवज्जे होंगे और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस तरह की अगर इवेंट कराए तो
تو اس میں لوگوں کو بہتر تفریح میسر ہوگی اور امن و امان میں مددگار ثابت ہوگا۔ گھوڑوں کے اس مقابلے میں جیتری کندار فراری نامی گھوڑے نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور فاتح قرار پائے۔ مقابلے میں جیتنے والے گھوڑوں کو بلوچی پگڑی پہنا کر مبارکباد دی اور ڈھول بجا کر ان کی فاتح کا جشن منایا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار دوست محمد مزاری اور سردار ایجاد خان مزاری خصوصی نے شرکت کی۔ جان میں سجنے والا یہ ثقافتی امن میلہ جہاں بلوچی ثقافت کا حسین امتزاج ہے اور وہیں دنیا کے لیے امن کا پیغام بھی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک طفیل، سچ نیوز، روزان۔ سرد موسم میں گرما گرم جلیبی کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ پاک پتن کے مختلف مقاموں پر کئی سالوں سے فروخت ہونے والی اسپیشل جلیبی شہر کی پہچان بن چکی ہے۔ چودھری طارق علی کی رپورٹ۔ گرما گرم جلیبی پاک پتن شہر کی بنی پہچان۔ خالص اجزاء سے تیار کی جانے والی گرما گرم جلیبی سردی کے لطف کو دوبالا کر دیتی ہے۔ کئی سالوں سے پاک پتن فروخت ہونے والی گرما گرم جلیبی کو کھانے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ بچے بوڑھے نوجوان سبھی شوق سے کھاتے ہیں۔ میں جب بھی یہاں آتا ہوں تو یہاں سے جلیبی کھا کر اسپیشلی گھر اپنے بچوں کے لیے بھی لے کر جاتا ہوں۔ جلیبی بہت مزیدار ہے، میں سردیوں میں بہت شوق سے کھاتا ہوں۔ جلیبی تیار کرنے والے کاریگروں کے مطابق خالص اجزاء سے جلیبی کا خام مال تیار کیا جاتا ہے، جبکہ اسے مناسب وقت کے لیے صاف ستھرے تیل میں مناسب وقت تک فرائی کر کے شیرے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ذائقہ اچھا کرنے کے لیے الائچی کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ جب خستہ جلیبی تیار ہو کر باہر نکلتی ہے تو اس کو دیکھ کر اس کے خوشبو سے ہی منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ کئی سالوں سے جلیبی بنانے کا کام کر رہے ہیں اور جب بھی سردی آتی ہے ہمارا کام ڈبل ہو جاتا ہے۔ ہم خالص چینی اور گھی اور میدا اور الائچی سے جلیبی تیار کرتے ہیں۔ پاک پتن کے شہری جلیبیاں کھانے والوں کا کہنا ہے کہ جلیبیاں اپنی خوشبو اور ذائقے کے لحاظ سے منفرد ہیں، جسے ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ کیمرہ مین وی کے ساتھ جو طارق علی، سچ ٹی وی، پاک پتن۔ الفجر انسٹیٹیوٹ ماریڈس میاں والی میں ولادت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے پروگرام منعقد کیا گیا۔ پروگرام میں طلباء، طالبات اور معلمین نے شرکت کی۔ زاہد عباس کی رپورٹ۔ الفجر انسٹیٹیوٹ ماڑی انڈس میاں والی میں ولادت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے حوالے سے پروگرام منعقد کیا گیا۔ پروگرام میں الفجر انسٹیٹیوٹ کے طلباء و طالبات، معلمین، پرنسپل ڈاکٹر ذوالفقار علی زیدی، ایڈوائزر ٹو سی ای او پروفیسر ذوق اختر اور مولانا قمر علی محمدی نے شرکت کی۔ پروگرام میں طلباء و طالبات اور معلمین نے سیرت فاطمۃ الزہرا پر بات کی۔ مولانا قمر علی محمدی نے کہا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا کی سیرت تمام خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے۔ انسٹیٹیوٹ کے تمام طلباء و طالبات کو چاہیے کہ وہ نماز اور تلاوت قرآن کریم کے ذریعے اپنا رابطہ اللہ تعالیٰ سے مزید بڑھائیں تاکہ اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ بہترین تربیت سے باکردار مسلمان و مومن بھی بن سکیں۔ صبح اٹھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کلام اپنے روح کے لیے معطر کرنے کے لیے کسی کی تلاوت آن کر لیں، 5 منٹ سن لیں، 1 صفحہ تلاوت سن لیں، 2 صفحے تلاوت سن لیں، جتنا ٹائم ہو سکتا ہے تلاوت سن لیں۔ پروگرام میں شریک شرکاء کا کہنا تھا کہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں اس طرح کے پروگرام نوجوانوں کی تربیت میں اہم کردار ادا کریں گے۔ کیمرہ مین نیاز شاہ کے ساتھ زاہد عباس، سچ نیوز، میاں والی۔ علاقائی خبرنامہ سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ سچ TV.pk۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔